Recording. All right. Good morning and sorry, good afternoon. Good morning. um हम मॉड्यूल 3 पे हैं. We are discussing contemporary issues and future ways uh, in Indian psychology. Yesterday हमने कल 3 important pointers देखे थे. We spoke about meditation, mindfulness and yoga, and how why it is important in different things, right? So we're continuing in the same topic. This was the last slide जहाँ पर हमने कल स्टॉप किया था क्लास. Meditation and emotional regulation. Right. So continuing, meditation contributes to emotional regulation through several mechanisms, including increased mindfulness. What is mindfulness? Mindfulness is being more aware, right? More aware of what? More aware of your surrounding, जो आजू बाजू चल रहा है, being more sensitive to what is happening, not just outside but also inside, right? So basically knowing yourself. आप कैसे फील कर रहे हो, आपके साथ जो हो रहा है, जैसे जो महसूस कर रहे हो वो क्यों हो रहा है. एंड एग्जैक्ट फीलिंग्स, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक हम इतने व्यस्त हो जाते हैं हमारे काम में, पढ़ाई में वगैरह, कि वी डोंट रियली टेक आउट द टाइम ये जानने के लिए कि हमारे साथ क्या चल रहा है, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ. राइट, वी नो कि ओके आई एम फीलिंग एंग्री, बट मुझे गुस्सा आ रहा है, पर क्यों आ रहा है, राइट? आई डोंट थिंक वी टेक आउट इनफ टाइम टू फाइंड दैट आउट, राइट? सो mindfulness, being more aware of the outside as well as the inside, which enhances awareness, acceptance of emotional experiences. हमने कल डिस्कस किया था कि the emotion, whatever you feel, you need to accept it, right? You need to accept yourself of who you are, है ना? You don't have to be someone else. बाहर हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही जो हमसे बेटर हो, यू नो, who is better at your work, your studies. जैसे इंडियन साइकोलॉजी में there is always going to be someone who is better than you, but you are still you, you are still unique, है ना? So accepting who you are, accepting yourself with your faults and हम सब में कमियां हैं, है ना? तो accepting yourself for who you are. So acceptance of emotional experiences, right? So we all have different experiences. Accepting ki one experience is acceptable, the other experience is not the right way of going. All the experiences that you have makes you, makes you unique, है ना? So accepting all kinds of experiences and being able to react to it in a proper way. Outburst ना होना. Outburst is basically हम हमारे अंदर इतना बॉटल करके of experiences. So being able to emotionally regulate yourself, कहाँ कैसे कितना कब रिएक्ट करना है, इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है. एंड द कल्टिवेशन ऑफ नॉन रिएक्टिव स्टांस टुवर्ड्स दोस एक्सपीरियंसेस, करेक्ट? So this particular thing, non-reactive stance, it comes from our text Bhagavad Gita. उसमें there is a term, इसमें there is a stanza which says कि no matter what you go through, भले वो दुख हो या खुशी हो या whatever you're going through in life, whether it's the most difficult phase of your life, you always have to have a balance. You always have to maintain that balance and stay in that uh, state of, always being balanced. uh, कुछ अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, कुछ बुरा होता है तो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है. टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दीज आर फ्लीटिंग मोमेंट्स, कि ये चीज आते रहेंगे इन योर लाइफ. समटाइम्स समथिंग गुड विल हैपन, sometimes bad things will happen, and these are all part of life,
right? So having a non-reactive stance, I'm not saying you have to be like a statue, you're not feeling anything at all. He you want to be happy, so you're saying no, no, it's okay, I'm fine. No, no, you should feel happy, you should feel sad, you should feel angry, but you should know to what extent. It should be balanced. It should not be where you lose yourself in that, right? Ki you're very happy and something happens and you're not able to take it only, and you're not able to process that sadness, or you know you lose someone very close to you, or you or a friend or a family member walks away or passes away, and you're not able to control your sadness, and you're not able to eat, not able to sleep, normal function नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, right? So बीइंग बैलेंस्ड मीन्स व्हाट, सब बैलेंस में होना चाहिए, राइट? व्हेन यू मेक फूड, जब आप एक खाना पकाते हो तो फिर नमक, हल्दी, मिर्च सब बैलेंस में होता है। इट्स नॉट लाइक ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वो थोड़ा, हर चीज का लिमिट होता है, हर चीज का अमाउंट होता है, राइट? सो एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस, ओनली देन will your life be beautiful. Some, and obviously as humans we are not perfect, कभी कभी हम भूल जाते हैं, सो कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यू फील a little bit more sad, little bit more happiness, but even if that happens, you should be able to understand कि it's okay, this is also fine. You should remember that you will be able to get out of this, कि आप ये एक्सपीरियंस जो है थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हुआ है, बट इट्स ओके, आई विल बाउंस बैक, आई विल कम बैक, है ना? आई बी एबल टू मैनेज, आई शुड गिव माई सेल्फ दैट स्पेस एंड टाइम, आई बी एबल टू मैनेज, राइट? So, being non-reactive, cultivation of non-reactive stance towards these experiences, right? So, being able to have that balance in life, through all your experiences. Now, uh, Halsell describes how mindfulness meditation strengthens the neural pathways involved in attention control and self-awareness, thereby facilitating emotional regulation. So, कल हमने different parts of the brain, जैसे brain को divide किया जाता है, there are different ways to divide your brain, correct? So, remember we spoke about front, center, back, and side, right? This is one way of dividing your brain parts, correct? Another way is two sides of the brain, correct? Now, there is something called neural pathways. We spoke about neurons. मैंने बोला था एक न्यूरॉन करके एक पार्ट है आपके ब्रेन में। जितने ज्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस आपके ब्रेन में जितना ज्यादा बढ़ता है न्यूरॉन्स का नंबर, आपके ब्रेन में जितना ज्यादा ग्रो होता है, जितना ज्यादा कनेक्शन बढ़ता है, योर ब्रेन इज एबल टू फंक्शन इन अ बेटर वे, ब्रेन उतना ज्यादा फंक्शन करता है, ओके? एंड इट कीप्स यू running, it keeps you smart, it keeps you alert, it keeps you young also, actually, okay? So these neurons have a pathway, okay? So imagine a car and a road, correct? These cars are your neurons, okay? This road is your neural pathway. So ये कार ये रास्ते से जाता है, वो पाथवे से जाता है, वो रोड से जाता है, राइट? वो न्यूरॉन्स का एक पाथवे है, एक रोड है, ओके? सो व्हेन यू मेडिटेट एंड यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ये न्यूरल पाथवेज एक्सपैंड होते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। इट मीन्स व्हाट, न्यूरॉन्स तो बढ़ते ही हैं, बट उनको ट्रैवल करने के लिए, या टू मूव अराउंड इन योर ब्रेन, टू फंक्शन इन योर ब्रेन, पाथवेज, देर आर मोर पाथवेज, और पाथवेज बिल्ड होते हैं, ओके? उससे क्या होता है? अटेंशन इंक्रीज होता है, फोकस, राइट? अटेंशन इंक्रीज होता है, अटेंशन पे कंट्रोल आता है, देयर इज मोर सेल्फ अवेयरनेस, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, यू आर एबल टू व्यू इट इन अ बेटर वे, ओके? thereby facilitating इमोशनल रेगुलेशन। इन सब से क्या होता है? इमोशनल रेगुलेशन बढ़ता है। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आर एसोसिएटेड विद चेंजेस इन द अमिगडाला। अमिगडाला करके एक पार्ट है, ओके? इट कम्स हियर at the back of your brain, okay? Amygdala is a brain region involved in emotional processing, leading to decreased emotional reactivity. So amygdala is a very small part, okay? ये जो back part of your brain, it's a very small part,
this part of your brain particularly is involved in emotional regulation. Okay, so आपको जो फील होता है ना, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, जेलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फील होता है, it comes mostly from your amygdala. Okay, so emotional regulation is based on your amygdala. Your emotions are processed through this part called amygdala. Okay, so amygdala is responsible for emotional processing. All right, now the more you meditate, okay, you don't have to meditate on amygdala. I'm saying when you meditate, जब आप meditate करते हो तो ये amygdala जो portion है आपके brain में, there are उसमें changes आते हैं. Okay, researches have been done on this. एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान जो मेडिटेशन नहीं करता था, उसको मेडिटेशन सिखाने के बाद, जब वो इंसान मेडिटेशन करता है, और उसके मेडिटेशन करने के बाद, दिस इज प्री स्टडी, pro study and post study, right? Three types in your research. So you do pre, pro, that is while, and post. So before, during and after जिसे कहा जाता है, and then to see कि brain में क्या changes आता है. So there were changes seen in this particular part of your brain. Amygdala में that particular part was seen to have changed in a person who practiced meditation, right? इनमें decreased emotional reactivity, मतलब reaction. Okay, acting. So there is a way, right? So how you react to a situation and how you act towards the situation, right? So like I said, you should all feel angry, you should feel all the emotions, but in a minimal way or in a balanced way, right? So decreased emotional reactivity doesn't mean कि these people don't feel anything. These people feel it in the right amount. Right amount, and I say they don't get that affected कि they are not able to function in their daily life. कि वो normal life जी नहीं पाते हैं, उनका सब रुक जाता है, थम जाता है, ऐसा नहीं है. They are able to move forward, they are able to carry out their daily activities. Okay, and after some time they bounce back to life, they come back to how they were, whatever happens in life, right? So decreased emotional reactivity, reaction to the situation comes down. Okay, and this happens where again? Amygdala, backside of your brain. Numerous studies have documented the effectiveness of meditation in reducing symptoms of stress, anxiety, and depression. These are three things again we saw yesterday. Stress, anxiety, or depression where meditation is useful is an established study. A meta-analysis of Goel et al. Found that mindfulness meditation programs had moderate evidence of improving anxiety and depression outcomes among participants, right? People who practice meditation, it's not like a medicine कि आप meditation practice करोगे क्या आपको कभी sadness feel नहीं होगा, मतलब depression या anxiety नहीं होगा, ऐसे नहीं है, but chances become less, okay, compared to people who do not practice. These benefits are attributed to meditation's ability to break the cycle of chronic stress response and maladaptive thought patterns that exacerbate these conditions. जैसे हमने बोला था, ये कल हमने एक टर्म देखा था, रूमिनेशन, मतलब एक ही थॉट, एक ही विचार पर बार 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 वही सोचते रहना, उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाना, राइट? इतना कि आप उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो. या फिर एक एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन करना, और एक पर्टिकुलर एक्शन करना एंड बीइंग ऑब्सेस्ड विथ इट, राइट? बार 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 बार, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, जो लोगों को क्लेanलीनेस, जैसे साफ सफाई का ऑब्सेशन है, तो वो उसके दिन में 10 बार बिना हाथ धोए रह नहीं सकते, राइट? सो दैट क्रॉनिक साइकिल और स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और ये होता है इसलिए जब उनको स्ट्रेस बढ़ता है, राइट? सो समझो कि ऑफिस में स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेस है आज बहुत, एंड ये इंसान जो 10 बार दिन में हाथ धोते हैं, वो 20 बार धोएंगे उस दिन हाथ, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप को हाथ लगाया तो मेरा हाथ, मेरे हाथ गंदे हो गए, तो मैंने वापस हाथ धो लिया. मैं कैफेटेरिया में गया, मैंने कॉफी पी, तो कॉफी किसी और ने दिया, तो मैंने वो ग्लास छू लिया, मुझे वापस हाथ धोना है. तो ये 10 बार 20 बार हो जाता है, तो वो ऑब्सेस. दिस इज बिकॉज देयर इज स्ट्रेस. इट्स नॉट रियली अबाउट क्लेanलीनेस.
मतलब इट्स नॉट अबाउट साफ सफाई या इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट स्ट्रेस इन द वर्क। तो वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से वो एक, अभी दिस इज हाथ धोना इज जस्ट एन एग्जाम्पल राइट, वो कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे बार बार हाथ पोंछना, या फिर हम किसी किसी लोगों को ये अपने नेल्स को ऐसे करना, या फिर अपना स्किन निकालना, या फिर कोई कोई लोग अपने बालों से खेलते हैं, या समथिंग, सम एक्टिविटी दैट कीप्स यू अवे फ्रॉम द एक्चुअल स्ट्रेस। तो आप अपने स्ट्रेस को एड्रेस किए बिना आप डाइवर्ट कर रहे हो अपने माइंड को किसी और चीज पर। ओके, दैट इज योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स राइट। हाँ, कोई कोई लोग बहुत ज्यादा खाते हैं जब स्ट्रेस होता है, तो ओवर ईटिंग होता है, यू ओवर ईट, यू डू सम, यू ईट एक्स्ट्रा। और सम पीपल डोंट ईट एट ऑल, जब स्ट्रेस होता है यू डोंट फील लाइक ईटिंग, यू डोंट फील लाइक स्लीपिंग, यू डोंट फील, आप वही चीज करते रहते हो, but you're not addressing the core problem, you're not addressing your stress, but you're trying to avoid it altogether and you're focusing on something else. Okay, तो chronic stress response, मैल अडेप्टिव थॉट पैटर्न्स। मैल अडेप्टिव थॉट पैटर्न्स, जैसे मैंने बोला कि आप स्ट्रेस को एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप कुछ और सोच रहे हो, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस जा नहीं रहा है, सो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चल ही रहा है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा, मैंने वो नहीं किया तो फिर कुछ और होगा, वैसे वैसे वो साइकिल राइट। सो someone's who practices these things, वो ये साइकिल को ब्रेक कर पाते हैं राइट, वो ये साइकिल को रोक पाते हैं। सो फॉर देम to be able to think clearly is possible compared to a person who does not practice, right? So they are able to stop, they are able to think back कि okay, let me think what exactly it is, what is the problem, let me think about it, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा is a secondary thing, but let's address the problem first, right? Now, transformative effects of meditation or on emotional states. Case studies provide compelling evidence of meditation's transformative impact on emotional well-being. We have seen so many cases now. For instance, a clinical report by Kearney et al. Highlighted the case of a veteran PTSD. PTSD is post-traumatic stress disorder. हम आजकल सोशल मीडिया में हम बहुत देखते हैं पीटीएसडी हो गया, मुझे पीटीएसडी हो गया, बट व्हाट इज इट? इट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा मतलब an incident, a very important incident that has taken place in your life, which has left you wounded. Small example, लेट्स से आप गिर गए हो और आपको चोट लगती है, एंड उसका स्कार रह जाता है, मतलब वो रह जाता है, वो जो आपको लगा है वहां पर एक छोटा सा स्किन में रह जाता है, जो आप बार बार देखते हो तो आपको याद आता है कि मैं गिरा था। वैसे ही मेंटली आपके लाइफ में कुछ बड़ा किस्सा जिसके वजह से आपको चोट लगती है, और आपको, आप भले वो इंसिडेंट भूल जाओ, भूल जाओ मतलब हम भूल नहीं पाते हमारे मेजर एक्सपीरियंसेस, ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, तो कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट्स के वजह से आपको बाकी चीजों पर असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैव हैड एक्सीडेंट्स, है ना, एक्सीडेंट्स या नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गए, या फिर डेथ ऑफ डियर वन, है ना, हमारे फैमिली में किसी, हम जिससे भी क्लोज होते हैं उनका डेथ, या um, हमें कोई छोड़ के चला जाता है, ऑल दीज ब्रेकअप्स एंड ऑल दीज ना, ब्रेकअप्स आजकल हर 2 दिन में होता है हमारा, बट व्हाट आई मीन टू से इज समथिंग वेरी वेरी traumatic, something which leaves a lasting impact on your life, that right, that is called trauma, जिसके वजह से बाकी चीजों पे असर पड़ता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा। स्ट्रेस, ट्रॉमा की वजह से स्ट्रेस होता है, करेक्ट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डील विथ इट, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस। ओके, मेंटल स्ट्रेस। नाउ, ट्रॉमा इमीडिएटली स्ट्रेस नहीं देता, वो ट्रॉमा इंसिडेंट के बाद होता है, इसीलिए पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट मतलब आफ्टर। ओके, सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ओके, इट इज कॉल्ड पीटीएसडी। नाउ, ओके,
So it highlights a case of a veteran with PTSD who experienced significant reductions in symptoms following participation in a mindfulness based stress reduction program. So मैंने जैसे बोला था, there are a lot of these mindfulness meditation and yoga. It has been accepted. It is a accepted way of research and therapy method in India as well as abroad. Okay, it's all new. अभी लास्ट एक डिकेड में ही हुआ है, लास्ट 10-15 साल में ही हम ये एक्सेप्ट करना शुरू किया है, इस पे रिसर्च करना शुरू किया है, इन साइकोलॉजी एटलीस्ट. सो इनको बेस रखते हुए, जैसे मेडिटेशन, योगा, और इनको बेस रखते हुए इन पे मॉडल्स डेवलप किए गए हैं. ओके, एंड इन मॉडल्स पे बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए गए हैं जो हम थेरेपी में यूज करते हैं. वन सच प्रोग्राम और वन सच थेरेपी इज माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, जिसमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होता है, बट इट इज फोकस्ड ओनली ऑन स्ट्रेस. ओके, नथिंग एल्स. इट्स नॉट बेस्ड ऑन अदर थिंग्स, नॉट अदर फैक्टर्स. स्ट्रेस कम करने के लिए पर्टिकुलरली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया जाता है इस प्रोग्राम में. इट्स कॉल्ड MBSR. इट्स वाइडली प्रैक्टिस टुडे. एंड इस केस स्टडी में, कारने के केस स्टडी में, PTSD, veteran मतलब someone who has been experiencing PTSD at least for another 10 to 15 years. ओके, वेटरन मतलब जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ओके, या जिनको उतने सालों से अनुभव है. तो समवन जिनको PTSD था पिछले 10-15 सालों से, उन पर जब ये MBSR ट्राई किया गया, उनके साथ ट्राई किया गया, तो उन्होंने देखा कि उनके सिम्टम्स कम हो गए हैं. सो PTSD के सिम्टम्स क्या होते हैं? सम ऑफ द सिम्टम्स आर पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, स्ट्रेस तो है ही. पैनिक अटैक्स आर, दे फील लाइक ओ आई एम गोइंग टू डाई. वो जो उन्होंने वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था, वही चीज वो वापस अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. राइट. सो फॉर समवन जो फ्लड्स में रह चुके हैं, I mean they have had the experience of being in a flood. For such people, उन अगर वो स्विमिंग पूल देखते हैं या समुद्र देखते हैं, सो उनको फ्लैशबैक आता है, राइट, कि ओ फ्लड्स हुआ था, आई वाज नॉट एबल टू ब्रीथ, और मैं डूब रहा था, वगैरह वगैरह. राइट. सो दीज आर सम एक्सपीरियंसेस. तो एंजाइटी में क्या होता है, उस दे वर नॉट एबल टू ब्रीथ, सो दे फील लाइक मुझे सांस नहीं मिल रहा है. दे आर इन अ नॉर्मल स्पेस, बट कुछ तो ट्रिगर हुआ. ट्रिगर मतलब क्या? ट्रिगर मतलब वो एक्सपीरियंसेस के कुछ यादें, समथिंग दैट वी कैरी बैक, है ना. तो हम वो चीज देखते हैं तो वो ट्रिगर होता है. तो दे सी द सी, और आप उनको बोलोगे लेट्स गो फॉर अ स्विम, तो इट गेट्स ट्रिगर्ड. तो उनके एक्सपीरियंसेस फ्लैशबैक आते हैं. एंड व्हाट हैपेंस, उनको लगता है कि ओ आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ. वो पानी में गए नहीं है, वो वहीं खड़े हैं, बट फिर भी दे फील लाइक आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ. मैं मरने वाला हूँ, मुझे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, मैं डूब रहा हूँ. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिगर्स. सो this is an example. So this person who is a veteran with PTSD, such a person, इतने सालों से जो भी वो symptoms experience कर रहे थे, according to this case study, after practicing MBSR, वो symptoms कम हुए. Okay, there's another case study by King et al. किंग के बाद मैंने वो ETAL लिखा है, वी रीड इट एज एटॉल. ओके, एटॉल हम तब लिखते हैं जब 3 से ज्यादा लोग ने रिसर्च किया हो. ओके, सो किंग इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नेम इन द पेपर. उसके बाद और भी 3 से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए हम एटॉल लिखते हैं. 3 नहीं, एक्चुअली हम 5 से ज्यादा लोगों के लिए एटॉल लिखते हैं. ऑलराइट. सो another case study by King and et al., that is King and more people. This was done in 2013, documented the experiences of individuals with chronic pain and depression, noting substantial improvements in pain management and mood following engagements in mindfulness meditation practice. तो कैंसर पेशेंट्स
पेन एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन हमने देखा है, इतनी बार देखा। क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक पेन, देर आर कंडीशंस, जैसे कैंसर पेशेंट्स, दे आर क्रॉनिक पेन, देर इज सो मच थेरेपी, इतना सारा मेडिकेशन होता है, बॉडी पे असर होता है, राइट? फिजिकली वो वीक होते हैं। उसके अलावा देर इज पेन, उनको दर्द होता है, एंड कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इट्स ट्रीटमेंट, वो नहीं किया तो फिजिकली वो वीक हो सकते हैं। सो फॉर दिस, फॉर मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकली वी कांट डू एनीथिंग, उनका पेन, दे हैव टू टेक पेन किलर्स, बट पेन किलर्स वर्क ओनली फॉर सर्टन टाइम्स, एंड दिन में 10 पेन किलर ले नहीं सकते। सो पेन इज क्रॉनिक पेन, इट गोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? Yeah, there are other conditions also, जिसपे physical conditions, जैसे किसी किसी का there's a condition called, वो उनके उनके बोन्स, हड्डियां ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब वीक होते हैं, तो वो बेंड नहीं कर सकते। बेंड कर लिया, एक ग्लास उठाना मतलब उनके लिए डंबल्स, डंबल्स मतलब वो वेट वेट होता है, वेट लिफ्टिंग में होता है, वो उठाने जैसा होता है। सो ग्लास उठा लिया तो उनका हड्डी टूट जाता है। दीज आर ऑल वेरी पेनफुल सिचुएशंस, सो ऐसे कंडीशन जिसमें क्रॉनिक पेन, जैसे पेन अवॉइड नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रेन आवर माइंड, राइट? सो क्रॉनिक पेन, पीपल हु एक्सपीरियंस दिस एक्सट्रीम ज्यादा पेन, उनके लिए डिप्रेशन, सब इनमें देखा। डिप्रेशन क्यों दिया गया? बिकॉज इज नॉट फिजिकल पेन, these people with depression they experience extreme mental pain, right? क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं रहा है, they feel like okay, some people are even suicidal, they don't know what to do, they want to end their lives. So for such people who are enduring physical pain as well as mental pain, उनमें देखा गया है कि ये पेन टॉलरेंस, पेन को, आई मीन एक्सपीरियंस पेन, टॉलरेंस जो है पेन को एक्सपीरियंस करने का टॉलरेंस बढ़ता है। पेन मैनेजमेंट, राइट? टू नॉट कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट पेन, बट थिंक अबाउट अदर थिंग्स, टू थिंक कि ओके, ये कंडीशन, शायद अगर कैंसर का फोर्थ स्टेज हो तो उनको टाइम पीरियड दिया जाता है, इतने महीने या 1 साल या 2 साल, तो उनको पता है ये 2 साल है मेरी जिंदगी कि मैं क्या कर पाऊंगा, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ यूजफुल, एंड हाउ कैन आई हेल्प मोर पीपल इन दिस टाइम, और हाउ कैन आई मेक माई लाइफ बेटर, बेटर इन द सेंस ये 2 साल में बेटर, राइट? सो पेन, डिप्रेशन, मेंटल या फिजिकल, उसका मैनेजमेंट एंड engage. How does this happen? This is all seen with the help of mindfulness. um Self awareness and mindfulness. Mindfulness again is a word for awareness, remember, right? So meditation as a tool for enhancing, कैसे better कर सकते हैं self awareness और mindfulness. The practice is intrinsically linked to the cultivation of self awareness, mindfulness. Kabat-Zinn Zinn defines mindfulness as the awareness that emerges through paying attention on purpose. मतलब पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर अटेंशन देना, फोकस करना, on what? On not on your surrounding, but on your inside, right? You bring your mind to the standstill. You bring your mind forcefully to pay attention to what is happening, right? So paying attention on purpose मतलब जानबूझकर attention देना in the present moment, not thinking about your past, not thinking about future में क्या होने वाला है, but present, अभी क्या चल रहा है, अभी मुझे क्या महसूस हो रहा है, उस पर नॉन जजमेंटली टू अनफोल्ड द एक्सपीरियंस मोमेंट बाय मोमेंट, नॉट टू जज योर सेल्फ, रिमेंबर, लुकिंग एट योर सेल्फ विद द स्पेक्स ऑफ एन अदर पर्सन, है ना? सो नॉन जजमेंट, जज नहीं करना खुद पर, खुद को, feeling good, accepting yourself as you are, doing all of this experience moment by moment, time by time, right? So हर चीज, तो मैंने I used a term yesterday, keeping your head and hands and mind in the same place. तो अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, उसके साथ म्यूजिक, गाने मत सुनो। आप असाइनमेंट्स कर रहे हो तो असाइनमेंट्स करो,
उसके साथ साइड में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, या फिर एक साइड इंस्टाग्राम चल रहा है, और मन कहीं और ही है कि इसके बाद मुझे बाहर जाना है शाम को शॉपिंग करने के लिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो योर हैंड्स आर समवेयर, हेड इज समवेयर, एंड योर माइंड इज समवेयर एल्स ओनली, करेक्ट? सो नॉट दैट, कीप एवरीथिंग टुगेदर, सो एक्सपीरियंसिंग एवरी मोमेंट, हर क्षण experiencing every moment mindfully, purposefully. Okay. This mindful awareness cultivated through meditation enhances the practitioner's capacity to observe them thoughts, feelings, sensations through attachment, without attachment, sorry, leading to greater emotional equilibrium and psychological well-being. So when you do that, okay, when you do योर एक्टिविटीज, और आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब आप ध्यान देते हो उस पर, और जैसे हम कहते हैं जानबूझ के करते हो, इट्स नॉट जानबूझ कर, बट अटेंशन देके, फोकस देके करते हो, सो यू बिल्ड अ सेंसेशन ऑफ नॉन अटैचमेंट, राइट? नॉन अटैचमेंट मीन्स देयर इज अ कंसेप्ट, राइट, कि आप जो करते हो, यू, आप समर्पित करो, वो अर्पण करो टू एन हायर ऑल्टर, टू समन. सो फॉर सम पीपल वी कॉल इट गॉड, राइट? पीपल हु बिलीव इन गॉड, वी वी जैसे मैंने एग्जाम दिया, राइट? एग्जाम देना मेरा काम है, पर उसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है. तो वंस यू डू द एग्जाम, यू से ओके, यू टेक केयर ऑफ इट, राइट? हाउ यू टॉक टू गॉड एंड यू से कि यू टेक केयर ऑफ इट, मैंने, आई हैव गिवन माय एग्जाम. सो डूइंग दैट, सो देयर इज नो अटैचमेंट टू द रिजल्ट. इफ आई गेट गुड मार्क्स, ग्रेट. इफ आई डोंट फेयर दैट वेल, ठीक ठाक मार्क्स मिले तो भी ठीक है. सो नॉट गेटिंग अटैच्ड. अगर आई गेट लेस मार्क्स एंड आई गो इनटू डिप्रेशन, not like that. So sensation without attachment, right? So knowing that I need to do my duty, but not getting attached to my duties, only doing the duty, only doing the action for the sake of doing the duty, right? So karm karna without getting attached to its fruits or result, right? So sensation without attachment leading to greater. जब आप करते हो, जब आपको अटैचमेंट ही नहीं है, जब आपको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो ऐसे ही आना चाहिए, मेरा रिजल्ट, मेरा कंक्लूजन ऐसे ही होना चाहिए, दिस शुड बी माई एंड रिजल्ट. व्हेन यू डू दैट, देयर इज एन इमोशनल इक्विबिलिटी, राइट? सो इमोशनली यूर ओके, अच्छा आया तो भी ग्रेट, ठीक ठाक आया तो भी ठीक है, अगर मैं फेल हो गया तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, राइट? सो इमोशनली यू आर बैलेंस्ड. And if you are emotionally balanced, obviously mentally also you are balanced. Psychological well-being. Okay. Now, meditation influences self-identity by promoting a more fluid and expansive sense of self. So when you do this, when you're not attached to the result, right, or the fruit of your action, you are focusing only on the action. You do your action, you do your duty. You understand that everyone, if all of us in a society, right, एक सोसाइटी में, एक समाज में, अगर सब ऐसे फंक्शन करते हैं कि आप अपने काम करो, अपना काम करो, और उसका फल जो भी आता है, उसका एक्शन का रिजल्ट जो भी आता है, वो देखा जाएगा. It's not in your hand if you accept that much. And if you all do our duties dutifully by knowing it properly, imagine we all understand that we are only a part of this greater puzzle. Remember, we had spoken about a puzzle. We are all part of a greater puzzle. We are only a part. We are not the picture. We are not the puzzle. We are part of that puzzle. But each of this puzzle in the right order, in the right formation, if we do, we get that proper big picture. Correct? Right now, we are all puzzles who are not fitting properly. We are here, there, somewhere, right? But if we do our parts properly, imagine, we understand that we are not just this much, but we are part of that greater picture, right? Now, here उससे क्या होता है, we are able to understand that we are decentered. मतलब decentered मतलब we stay rooted. We understand why we have to do what we have to do, but at the same time, we are able to observe their experiences without over identification. We don't say कि oh, मैं नहीं हूं तो, दिस इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पजल. आपके बिना, आई मीन, आप हो, नेसेसरी हो, यू आर नीडेड टू डू योर वर्क.
बट आप नहीं हो तो दुनिया नहीं चलेगी बाहर, ऐसा नहीं है। आपने स्क्रॉल नहीं किया इंस्टाग्राम 10 घंटे तो आ, वो इन्फ्लुएंसर को आपका लाइक नहीं मिला तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू फंक्शन, ऐसा नहीं है। यू आर इम्पोर्टेंट, बट नो व्हाट योर पार्ट इज, नो एंड डू दैट मच, दैट इज इम्पोर्टेंट। Okay, having that clarity is important. This meeting is going to end. Shall we rejoin? What do you think? Do you need 40 more minutes? I don't need 40. I mean, there are more slides to go. If you're comfortable today, we do it today, or we do it tomorrow or whenever. What about students?